Now we see the differential equation. So one of the very important chapters in applied mathematics. Now first we see the definition of differential equation. Now first we define differential term or derivative term. Now when suppose we have to consider any function y is equal to sin x, differentiate with respect to x, so we get dy by dx is cos x. Again differentiate with respect to x, so we get d2y by dx square minus sin x. Again differentiate with respect to x, d cube y upon dx cube minus cos x, and so on. So in that case, dy by dx, d2y by dx square, d cube y by dx cube, this is called differential term और डेरिवेटिव टर्म. तो पहली बार डेरिवेटिव किया उसको फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, सेकंड दो बार किया तो सेकंड ऑर्डर, तीन बार डेरिवेटिव लिया तो थर्ड ऑर्डर. तो जितनी बार आप डेरिवेटिव लेंगे उतना उसका ऑर्डर आपको मिलेगा. नाउ इन दैट केस dy by dx, d2y by dx square, d cube y by dx cube, this is called differential term or derivative term. So how we define differential equation? An equation contain derivative term is called differential equation. तो कोई भी एक इक्वेशन, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन बनेंगे जिसमें ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आते हैं. So an equation which contains such type of differential terms, we have to say that it is a differential equation. Now just you have to see one thing, dy by dx, that means this y is called dependent variable. Dependent variable. And this x is called independent variable. That means differential equation contain two variable. One is dependent variable and another is independent variable. So here we define an equation which contain derivative terms or differential terms. We have to say that it is a differential equation. For example, there are so many examples. First order, second order, third order. dy by dx plus y is equal to 5, or d2y by dx square plus 3y by dx plus 6 equal to 0, or d cube y by dx cube whole square 3 dy by dx raised to 4 plus 5y equal to 0. These are the differential equations. dy by dx plus sin y equal to 0. So in this case we have to say that these are the differential equations. This is the first order. Here also first order and second order. Here first order, third order. This is the first order. Now the next thing we see how we define the order and degree of the differential equation. Now here we see this is contain only one term, dy by dx. So that's why order of this differential equation is 1. How we define the degree? Degree का मतलब होता है ये, यानी ये इसको ऑर्डर कहते हैं और इसको डिग्री कहते हैं. अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं. अब दो टर्म में से कौन सा डिग्री के लिए लेंगे और कौन सा ऑर्डर के लिए लेंगे? तो जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला है, अभी हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 2 है. तो नेचुरली ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो 2 हो गया, और उसी का ही डिग्री लेना है आपको, उसी का ही डिग्री लेना है. तो कभी भी ध्यान में रखो कि इनकेस अगर आपको ऑर्डर का डिग्री कम है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिग्री वही आपको सिलेक्ट करना है. जैसे कि अभी एग्जांपल पे आओ, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, डी वाई बाई डी, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? 3, इसलिए ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3. अब आप कहेंगे कि इधर डिग्री ज़्यादा है तो ये लेना है, ऐसा नहीं है. जो ऑर्डर जिस टर्म का आपने ऑर्डर लिया है
हाईएस्ट ऑर्डर का, उसी का ही डिग्री आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिग्री 1 है और ऑर्डर 1 है, यहाँ पे ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, यहाँ पे ऑर्डर 3 है और डिग्री 2 है। 4 नहीं लेना है। 4 क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो इससे लेस है, ये टर्म से इसका ऑर्डर लेस है, इसलिए ये डिग्री आपको नहीं लेना है। डिग्री यही टर्म का लेना है जिसका ऑर्डर ज़्यादा है। तो इन सच अ वे वी हैव टू डिफाइन हियर द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब आप ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करते हैं, इन दैट केस, तो कभी भी ध्यान में रखो कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई रूट साइन आता है या पावर में फ्रैक्शन रहता है, नेगेटिव पावर रहता है, तो सबसे पहले उसको रिमूव करना है। जब तक आपका वो रूट साइन या जो पावर का फ्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव जब तक आप नहीं निकालते हैं, तब तक आप ऑर्डर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल equation. Now here, when we find order and degree of differential equation, remove negative power, fraction power, ओके। नेगेटिव पावर अगर है -3 +3, वो -3 वगैरह है तो उसको रिमूव करना है। फ्रैक्शन यानी 2/3 1/3 जो भी है उसको आपको रिमूव करना है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल रूट ऑफ dy/dx + y = 0, ये अगर आपको इसका ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है। So how you find out the order of this differential equation? तो यहाँ पे देखिए एक रूट साइन है। रूट साइन का मतलब फ्रैक्शन पावर, dy/dx raised to हाफ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी जो भी ऑर्डर या डिग्री होता है वो कभी भी फ्रैक्शन या नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले ये रूट साइन को आपको यहाँ से निकालना है। तो रूट साइन तभी निकलेगा जब हम स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करते समय ये भी ध्यान में रखो कि आप a + b होल स्क्वायर के इसमें नहीं आना चाहिए, वो टोटली डिफरेंट आना चाहिए। जैसे कि dy/dx = -1, अब टोटली रूट वाला टर्म डिफरेंट हो गया है। अभी आप स्क्वायरिंग करो। स्क्वायरिंग करने के बाद ये रूट आपका निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा dy/dx, माइनस है लेकिन स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। तो इन सच ए वे इसका ऑर्डर भी 1 हो गया और डिग्री भी 1 हो गया। देखो इसका फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो इस तरह से अगर रूट साइन आता है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं स्क्वेयरिंग वगैरह लेके। अनदर एग्जांपल, थर्ड रूट ऑफ d2y/dx³ = 4th रूट ऑफ dy/dx। अगर ऐसा दिया है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सब रूट ही रूट है, थर्ड रूट, फोर्थ रूट। तो ऐसे समय क्या करेंगे आप, d3y/dx³ raised to 1/3 dy/dx raised to 1/4। अब इधर से क्यूबिक रूट लेना है, फोर्थ रूट लेना है, कुछ भी नहीं करो, कुछ भी मत करो, आप ये 3 को इधर ट्रांसफर करो, ये 4 को इधर ट्रांसफर करो, यानी d3y/dx³ raised to 4 हो जाएगा = dy/dx raised to 3 हो जाएगा। बस क्रॉस जो भी है 4 को इधर और 3 को इधर ट्रांसफर कर दो। तो देखिए यहाँ पे अभी हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म की तरफ ध्यान दो, ये हमारा हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म है, तो उसकी तरफ ध्यान दो और उसी के डिग्री की तरफ ध्यान दो। सो ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज 4। तो जिस तरह से रूट साइन आता है, रूट साइन को रिमूव करने के लिए आपको इस तरह से कैलकुलेशंस करने हैं। स्क्वायरिंग वगैरह जो है या कोई भी पावर में अगर फ्रैक्शन में आता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, देख इस टाइप का टर्म आता है dy/dx + y = अगेन dy/dx। इस तरह का टर्म आया, इसका मतलब है कि ये dy/dx जो है वो डिनोमिनेटर में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी dy/dx का टर्म डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए।
यानी इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम ऊपर लेते हैं तो नेचुरली पावर जो है वो नेगेटिव होता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी डिग्री जो है वो नेगेटिव नहीं होती है। तो सबसे पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx, थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर तो एक ही है, ऐसे समय जिसका डिग्री ज़्यादा है वो सिलेक्ट करो। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, ओके। तो इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है। तो ऑर्डर अगर सेम है तो डिग्री हाईएस्ट वाला जो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो हियर द ऑर्डर इज 1 एंड द डिग्री इज 2। फोर्थ वन, k इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाय डी एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 अपॉन d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे d2y बाय डी एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो इसको इधर लेके आओ, k इंटू d2y बाय डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस dy बाय डी एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। अब देखिए ये पावर जो है वो सिर्फ dy बाय डी एक्स का है, और ये पूरे टोटल ब्रैकेट का है, तो ये 2 इधर आप ट्रांसफर कर दो, k इंटू d2y बाय डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और इधर आएगा 1 प्लस dy बाय डी एक्स स्क्वायर रेज टू 3। बस ये जो 2 डिनोमिनेटर में था उसको सीधा इधर ट्रांसफर कर दिया, पूरे टर्म के लिए होगा। अब मल्टीप्लिकेशन में पावर तो अलग अलग होता है, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड हियर 1 प्लस dy बाय डी एक्स होल स्क्वायर रेज टू 3। तो अभी देखिए यहाँ पे ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 2। तो इन सच ए वे वी हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो टेक अनदर एग्जांपल, d2y by dx square plus 5 dy by dx plus 4 integral of y dx. How you find out the order and degree of this equation? 5 dy by dx plus 4. Now y, it is a constant because not contain x, because we have to integrate with respect to x. So इंटीग्रेशन में एक ही वेरिएबल होता है, डेरिवेटिव में dy बाई डी एक्स 2 वेरिएबल होते हैं, बट इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब यहाँ पे टर्म में x प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तो y इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू 0। सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 5 dy बाई डी एक्स 4yx इक्वल टू 0। तो देखिए अभी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। तो इन सच ए वे वी हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अनदर एग्जांपल, सो हियर रूट 1 प्लस 1 अपॉन dy बाय dx होल स्क्वायर इक्वल टू d2y बाय dx स्क्वायर रेज टू 3/2। तो देखिए सबसे पहले रूट का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन dy बाय dx स्क्वायर, और रूट का मतलब होता है रेज टू हाफ, और इधर आता है d2y बाय dx स्क्वायर रेज टू 3/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए अभी 1 प्लस 1 अपॉन dy बाय dx स्क्वायर रेज टू 2 इज इक्वल टू, अब ये 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, d2y बाय dx स्क्वायर 2 इंटू 3 दैट इज 6। अब देखिए यहाँ पे dy बाय dx स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 अपॉन dy अपॉन dx होल स्क्वायर, ओके, प्लस d2y बाय dx स्क्वायर रेज टू 6। देखो अभी तक ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब देखिए ये होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो है वो होल स्क्वायर है, तो dy अपॉन dx होल स्क्वायर प्लस 1, तो आप इसको होल स्क्वायर रखो, और dy अपॉन dx होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो टोटल हो जाएगा 4, और इधर हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर रेज टू
6। अब ये टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दो, देखिए मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या हो जाएगा, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर रेस टू 6 और उधर जाके ये भी मल्टीप्लाई करो dy बाई डी एक्स रेस टू 4। देखो दो टर्म मल्टीपल आजू बाजू में मल्टीपल फॉर्म में आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिग्री क्या है 6 और ऑर्डर क्या है 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल फॉर्म में अगर आता है फिर भी आप डिग्री और ऑर्डर उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये दोनों मल्टीपल फॉर्म में आए तो नहीं निकाल सकते, यू फाइंड इट, नो प्रॉब्लम। नाउ टेक अनदर वन, रूट ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स माइनस xy स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक टर्म में रूट है तो नेचुरली वो रूट को आपको वहां से निकालना है। अब रूट को निकालते समय एक ही आपके पास ऑप्शन है और वो है स्क्वायरिंग का। अब स्क्वायरिंग करते समय ये इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर करते हैं तो ही ये रूट आपका निकल पाएगा। तो इसके लिए आपको रूट वाला जो टर्म है वो टोटली ये दो टर्म्स के आइसोलेट करना पड़ेगा, यानी रूट ऑफ d2y dx स्क्वायर, ये दोनों टर्म को उधर भेज देते तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों उधर जाके प्लस उधर जाके प्लस। अब आप स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एंड dy बाई डी एक्स xy स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इस तरह से अभी ये दोनों को स्क्वायर करने के बाद इधर हमको कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है क्योंकि इधर हमारा हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म है, तो जहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म है उधर ही देखो, बाकी दूसरे टर्म को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी हाईएस्ट ऑर्डर वाला इधर है यानी ऑर्डर और उसका ही डिग्री ले लो, तो डिग्री इज 1। तो इस तरह से हमने ये स्क्वायरिंग करके ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट किया है। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल d2y बाई डी एक्स स्क्वायर रूट 5y। देखिए रूट y रूट x ये भी टर्म डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड आउट करते वक्त नहीं दिखना चाहिए। जैसे रूट 5 है नो प्रॉब्लम, रूट 5 यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे तो हम डायरेक्ट ऑर्डर और डिग्री डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कांस्टेंट का रूट है वो चलेगा, ऑर्डर क्या है 3 और उसी का डिग्री क्या है 1। लेकिन ये प्रॉब्लम में ऐसा नहीं है, ये कंप्लीट रूट है। इसका मतलब क्या है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 इंटू रूट y इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब तक ये रूट 5 चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूट y को जब तक आप उसका रूट नहीं निकालते हैं आप, तब तक आप डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इंटू रूट 5 इंटू रूट y। नाउ स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग करने के बाद आप बताइए क्या आएगा इसका आंसर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस रूट 5 इंटू रूट y होल स्क्वायर। सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 5y। सो हियर ऑर्डर इज 2 और उसी का ही डिग्री लेना है तो 1। So in such a way we have to find out order and degree of the differential equation. Now we see the formation of differential equation by elimination of arbitrary constant. So before that we see the solution of differential equation. Now what is the solution? Suppose here we have to take function y is equal to cos x. Now differentiate with respect to x. dy upon dx. What is the derivative of cos x? It is minus sin x. Again differentiate with respect to x. So d2y by dx square. What is the derivative of sin x? It is again cos x. But we know that. What is our cos x? Cos x is nothing but our given example. So therefore d2y by dx square is equal to minus y, or d2y by dx square plus y is equal to 0. सो हियर सॉल्यूशन और वहां से हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया दोनों यहाँ पे मिल गए। सो हियर y इज इक्वल टू cos x इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx square plus y इक्वल टू
0। तो इसको सॉल्यूशन कहते हैं y इज इक्वल टू कॉस एक्स को, डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का। तो अभी हमको आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होते हैं वो देखना है। इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं था। ओके, देखिए, तो इस तरह से हमने सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया है। सॉल्यूशन से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया है। ओके, तो इन दैट केस कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं था। अब सबसे पहले देखते हैं कि आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होते हैं। जनरली सपोज यू हैव टू टेक equation of a line which is passing through the origin is y is equal to mx. m is nothing but our slope. ये आपका slope है. So there are infinite number of lines which is passing through this origin. तो इस तरह से infinite number of lines जो है, इन सब का जो equation है वो y is equal to mx है. जैसे कि y is equal to x, y is equal to 2x, y is equal to 3x, okay, y is equal to 4x. So all these lines are passing through the origin. And what is m? m is indicate the slope of each line. तो इस तरह से m को अगर हम चेंज करते हैं तो लाइन का जो पैटर्न है वो सेम टाइप का रहता है, विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी उसका जो जो बोलते हैं हम, ऑल दिस लाइन्स आर पासिंग थ्रू origin. That means the behavior of line is same and all the lines are passing through origin. So that's why this is a family of curves, and here that m is called as a arbitrary constant. इसको arbitrary constant कहते हैं। तो ये m का अगर हम different values put करते हैं तो we will get the line which is passing through the origin. तो इस तरह से बहुत सारे कर्व्स आपको मिल सकते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू एम एक्स है। ओके, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, y इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू एम एक्स। देखिए अभी ये m जो है वो फंक्शन का पार्ट है, यानी ये m है, इट इज नॉट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इट इज विथ वेरिएबल x, दिस इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू सपोज a इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ, या a निकाल देते हैं, ये निकाल देते हैं, साइन ऑफ बी सी एक्स प्लस डी। तो इन दैट केस x के साथ जो है a और c दे आर नॉट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, बट हियर b एंड d को आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले सकते हैं। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो मोस्टली वेरिएबल के साथ जो दिखते हैं उसको हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं कहेंगे, और जो अकेले है यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी a हो गया, इधर a, इधर b, इधर m, इधर b, d। ओके, इस तरह से आपको जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अब सॉल्यूशन, इसमें एक जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन। यानी जो भी आपको इक्वेशन दिया है उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं वो, और ऑर्डर जो है डिफरेंस डेरिवेटिव्स का वो सेम होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर हियर? 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसका मतलब है कि जनरल सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 है तो ऑर्डर भी 2 होना चाहिए, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 है तो ऑर्डर भी 3 होनी चाहिए, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है तो ऑर्डर भी 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्म होगा उसमें ऑर्डर जो है वो 2 रहना चाहिए, और साथ में ये भी कंडीशन है कि ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ये भी आपको उसमें नहीं दिखने चाहिए। देखिए अभी 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x, आफ्टर दैट b इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x।
मानो यहाँ पे x की जगह mx आता है, इधर mx आता है, तो ये m आर्बिट्री कांस्टेंट का पार्ट नहीं है. ओके, रिमेंबर दिस. सो dy अपॉन dx, a साइन का डेरिवेटिव cos x, b cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x. सो dy अपॉन dx, a cos x माइनस b साइन x. ये पहला डेरिवेटिव हो गया. हमारे पास में दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो फिर से डिफरेंशिएट करो. अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो d2y बाय dx स्क्वायर a इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x. तो d2y बाय dx स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x माइनस b into derivative of sin x is cos x. So minus a into sin x minus b into cos x. तो देखिए यहाँ पे माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं a sin x प्लस b cos x, तो हमारा ओरिजिनल एग्जांपल क्या है? देखो y a sin x प्लस b cos x, यानी ये आपका y है गिवन. तो ये हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर माइनस y और d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0. तो इस तरह से देखिए दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, वो लास्ट जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया उसमें वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं भी है, और ये दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर भी 2 है. तो जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी ऑर्डर भी होनी चाहिए और साथ में उसका एलिमिनेशन भी होना चाहिए. टेक अनदर एग्जांपल. y इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू x प्लस b इंटू ई रेज टू माइनस. अब इसमें जो फंक्शन है वो फंक्शन में टर्म इसी टाइप में रहते हैं कि जिसका डेरिवेटिव इस तरह से आपको मिलना है कि आगे जाके y का फॉर्मेशन आपको मिलना ही है. जैसे साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, तो उसमें y का फॉर्मेशन इजीली मिल जाता है. वैसे ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही होता है, तो आगे जाके आपको y का फॉर्मेशन इजीली मिल जाता है. हर एक फंक्शन के लिए ये पॉसिबल नहीं है, मोस्टली एक्सपोनेंशियल और साइन कॉस के लिए ये पॉसिबल होता है. इसलिए मोस्टली जो एग्जांपल्स है उसमें साइन कॉस या एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आपको दिखने वाले हैं. तो जनरली ई रेज टू एक्स, तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? 2 है. इसका मतलब आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है और फिर से y को यहाँ पे लेके आना है. चलो डिफरेंशिएट with respect to x. तो dy upon dx, a into derivative of e raised to x, b into derivative of e raised to minus x. So dy upon dx, derivative of e raised to x is e raised to x. e raised to minus x, लेकिन x की जगह माइनस x है इसलिए फिर से माइनस x का डेरिवेटिव वो कंपोजिट में चला जाता है. a into e raised to x, b into e raised to minus x into derivative of minus x is minus 1. So dy upon dx, a into e raised to x minus b into e raised to minus. तो एक ही बार डेरिवेटिव हो गया, लेकिन हमारे पास कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं? हमारे पास 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है. इसकी वजह से आपको 2 बार डेरिवेटिव्स लेना है यहाँ पे. तो चलिए फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं और देखते हैं फिर से y हमको मिलता है कि नहीं है. सो अगेन डिफरेंशिएट with respect to x. तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा d2y by dx स्क्वायर a into derivative of x minus b into derivative of e raised to minus x. तो d2y by dx स्क्वायर a derivative of e raised to x is e raised to x, e raised to minus x into derivative of minus x. So d2y by dx square a into e raised to x b into e raised to minus x into minus 1. So d2y by dx square a into e raised to x minus minus plus b into e raised to minus. देखो फिर से y मिल गया आपको. देखिए ये y. So d2y by dx square equal to y. So in such a way we form the differential equation by elimination of arbitrary constant. Take third example. Y is equal to a into e raised to fx. Now in this case
e raised to mx, दैट मीन्स m तो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, लेकिन a इज अ आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, दैट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट वंस। हमको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, a को रिमूव भी करना है और फिर से y को लेके भी आना है। ये तीनों चीजें आपको एट अ टाइम यहाँ पे करनी है। सो फर्स्ट गिवन दैट y इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू mx, करो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, a इंटू ई डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एम एक्स, तो फिर से आपको mx का डेरिवेटिव लेना है क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है। सो dy अपॉन डी एक्स, ई रेज टू एम एक्स का ई रेज टू एम एक्स, m इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो dy अपॉन डी एक्स m a इंटू ई रेज टू एम एक्स, मैंने एक ब्रैकेट में रखा है बिकॉज मुझे पता है कि हमारा जो y है वो a इंटू ई रेज टू एम एक्स है। सो देयरफॉर कंडीशन था एक ही बार डेरिवेटिव लेना है और फिर से y का फॉर्मेशन यहाँ पे होना ही है। तो इस तरह से ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू my और dy बाई डी एक्स माइनस my इक्वल टू 0। सो इन सच ए वे वी फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय elimination of arbitrary constant. So given that y is equal to ax square. Now here one arbitrary constant is present. So that means एक ही बार डिफरेंशिएट करना है और साथ में एलिमिनेशन भी होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन है। चलो करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन डी एक्स, ये तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, dy बाई डी एक्स, a डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x। इसका मतलब है कि अभी पहला डेरिवेटिव हमने किया है, लेकिन हमारा कंडीशन क्या था कि उसके साथ साथ a का एलिमिनेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे a का एलिमिनेशन नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे कि जब आप एक बार डेरिवेटिव लेते हैं तो आर्बिट्री कांस्टेंट का एलिमिनेशन नहीं होता है। तो ये केस में आपको जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसका ही वैल्यू निकालना है और वो आपके ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसमें जाके पुट करना। जैसे यहाँ पे a का वैल्यू मैंने निकाला है और ये वैल्यू अब मैं 1 में जाके पुट करता हूँ, पुट इन 1, तो देखो बराबर आपका a का एलिमिनेशन भी हो जाएगा और साथ में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव भी मिल जाएगी। तो a की जगह 1 अपॉन 2x dy अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इस a की जगह हमने ये पूरा का पूरा वैल्यू जाके पुट कर दिया। अब एक x कैंसिल कर दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। तो इस तरह से यहाँ पे a का एलिमिनेशन भी हो गया, ऑर्डर भी 1 आ गया है और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन भी फॉर्म हो गया है। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल, सेकेंड वन y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस है, वहाँ पे भी आपको एक आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है, तो इसका मतलब कंडीशन एक ही है कि एक ही बार डेरिवेटिव वहाँ पे होनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स, तो पहले cos का डेरिवेटिव आएगा, कंपोजिट फंक्शन है, और बाद में x प्लस a का डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ पे cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ऑफ x प्लस a, x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0, सो इट इज माइनस साइन ऑफ x प्लस a एंड डी वाई बाई डी एक्स। अब हमारा कंडीशन है कि डबल, हमको पता है कि अगर मैं डबल डेरिवेटिव लेता हूँ तो साइन का कॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं डबल डेरिवेटिव नहीं ले सकता। वो इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे दूसरा डेरिवेटिव नहीं ले सकता। तो फिर क्या करना होगा मुझे, फिर साइन को कॉस में चेंज करने का दूसरा कोई तो भी फॉर्मूला है मेरे पास में, वो देखना पड़ेगा। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्मूले से मुझे जाना होगा, तब जाके मेरा एलिमिनेशन हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, अब साइन की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए में पुट करता हूँ बाय यूजिंग दिस रूल। तो इस तरह से मैंने साइन को कॉस में कन्वर्ट किया है, माइनस अब ये जो है ये क्या है, ये मेरा y है, इसका मतलब ये
y हो गया। सो इट इज़ अ y स्क्वायर। अब ये रूट को निकालना, क्योंकि डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में रूट नहीं आता है, रूट वेरिएबल के लिए नहीं होता है, कांस्टेंट के लिए रूट होता है तो चलता है। अब स्क्वायरिंग करता हूँ, स्क्वायरिंग dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस भी निकल जाएगा और रूट भी निकल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो एक उसका ऑर्डर भी 1 है, डिग्री चलेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर भी 1 है और यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट का एलिमिनेशन भी हो गया है। सो इन सच ए वे वी फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। नाउ वी सी द मेथड्स of differential equation, how we find out the solution of differential equation। अभी तक हमने क्या किया था, सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया था। अभी हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे कि आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और वहां से आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ दो ही मेथड मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। पहला है वेरिएबल सेपरेबल मेथड और दूसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वेरिएबल सेपरेबल में क्या है, क्लियरली दिख रहा है कि वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं, एक x dy बाई डी एक्स का मतलब एक y है और दूसरा x है। तो ये दोनों x और y को सेपरेट करके उसका इंटीग्रेशन करना है, दैट मेथड इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, वो आपको देख के ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड के लिए मैं एक डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूं और वहां से आपके आइडियाज क्लियर करता हूं। x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। ठीक है, आप कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हो गया। अगर आप डिवाइड बाई डी एक्स करते हैं तो x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ऐसे भी होता है। ओके, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, लेकिन सिर्फ लिखते समय उन्होंने ऐसे लिखा है, x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ओके, डिनोमिनेटर का dx को आप हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए dx और dy, तो सबसे पहले जब भी आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको dy और dx को अलग अलग करना है, ताकि y आप dy की तरफ लेके जाएंगे और x की टर्म्स जो है वो dx की तरफ लेके जाएंगे। तो x dy इज इक्वल टू वाई डी। सबसे पहले एक ही काम करने का, dy और dx को अलग करने का। उसके बाद फिर y को dy की तरफ और x को dx की तरफ, उसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। y वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, x तो उधर चला जाएगा और y इधर आएगा, क्योंकि y इधर आएगा तो 1/y हो जाएगा, x उधर चला जाएगा तो 1/x हो जाएगा। तो इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यानी x के वेरिएबल x की तरफ, y के वेरिएबल y की तरफ। बस एक बार ये हो गया, अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट, सिर्फ इंटीग्रेट लिखो, 1/y dy 1/x dx। तो इंटीग्रेशन देखो, अभी 1/y का इंटीग्रल आपको भी पता है, 1/y इज द डेरिवेटिव ऑफ log y, 1/x इज द डेरिवेटिव ऑफ log x। तो कभी कभी आपको ऐसे भी आंसर दिए रहेंगे, log x इज इक्वल टू log y इज इक्वल टू log x प्लस c, इट इज आल्सो द करेक्ट आंसर। लेकिन आपको अगर आगे भी जाना है तो कभी कभी आप ये log के रूल अप्लाई करके ये सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जैसे कि log है, इधर भी log है, इधर भी log है, तो आप कांस्टेंट को log में ले सकते हैं। बाकी किसी के लिए नहीं तो आप कहेंगे इधर साइन y आया, इधर साइन x आया, तो हम कांस्टेंट भी साइन c में लेंगे, ऐसा नहीं है। जब log आता है तो ही आप सभी टर्म्स में, अगर log प्रेजेंट है तो ही आप log c ले लो। अगर यहाँ पे log नहीं है फिर भी आप यहाँ पे log लेंगे तो कोई मतलब नहीं है। ये हम log इसलिए ले रहे हैं ताकि ये log a प्लस log b, log a माइनस log b का फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस उसके लिए हम ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अगर आप यहाँ पे log नहीं देते फिर भी आपका आंसर राइट ही रहने वाला है, रॉन्ग नहीं होगा। तो ठीक है, मुझे आगे और सॉल्व करना है, इसलिए मैंने कांस्टेंट को भी log में लिया है। तो log y, अब log a प्लस log b का फॉर्मूला यानी log ऑफ a इंटू b। अब यहाँ पे log को निकाल सकते हैं आप, जैसे टेकिंग log ऑन बोथ साइड वैसे रिमूविंग log ऑन बोथ साइड भी कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर इज y इज इक्वल टू x इंटू c। इन सच ए वे वी हैव टू सॉल्व द एग्जांपल्स ऑन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देखिए, जैसे हमने dy और dx को अलग अलग कर दिया है,
और उसके बाद हमने उसका इंटीग्रेशन लेके हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिया है।